سب سے پہلے آپ کو بتائیں، گرمی میں دو اے سی کے مزے لینے والے ہو جائیں ہوشیار۔ متعلقہ سب ڈویژن دفتر کو اطلاع کیے بغیر دوسرے اے سی کے استعمال پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ بڑھتی ڈیمانڈ نے فیسکو کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اب ایک سے زائد اے سی کے استعمال سے متعلق فیسکو کو آگاہ کرنا ضروری ہوگا۔ گھر میں استعمال شدہ اے سی سے متعلق صارفین میٹر ریڈرز کو بتانے کے پابند ہوں گے۔ میٹر ریڈرز متعلقہ سب ڈویژن میں صارفین کی لوڈ رپورٹ جمع کروائیں گے۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز طاہر محمود شیخ کا کہنا ہے کہ صارفین اپنے اے سی کے استعمال اور لوڈ کی تفصیلات میٹر ریڈرز کو فراہم کریں تاکہ ٹرانسفارمر پر مکمل لوڈ مینجمنٹ کی جا سکے۔ جیسے موسم گرم ہوا ہے، جو بجلی کے اپلائنسز ہیں، اسپیشلی پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشنر ہیں، ان کا استعمال شروع ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے پورے ریجن میں جو ہے 250 سے زیادہ میگا واٹ کا جو ہے نا ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو وہ ہمارے پاس الحمدللہ طلب سے زیادہ بجلی موجود ہے سسٹم میں، اور وہ پورے ریجن میں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ فیسکو میں اے سی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے گزشتہ ایک ہفتہ میں 300 میگا واٹ ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ کیمرہ مین شعیب مجید کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے لیے اچھی خبر، دیرینہ مطالبہ کارگو مینٹل کا خواب تعبیر کے قریب۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارگو کمپلیکس کی منظوری کے بعد جگہ مختص اور کمپلیکس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی تیار کر لی گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے یومیہ، ہفتہ وار اور سالانہ مسافر طیاروں سے بھی کارگو کی ممکنہ گنجائش کے حوالے سے پروپوزل ڈرافٹ کر کے بھجوا دی ہے۔ بزنس کمیونٹی کے دیرینہ مطالبے کارگو ٹرمینل پر بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ کارگو ٹرمینل کے لیے سول ایویشن کی جانب سے ڈیزائننگ کو جگہ مختص کر دی گئی۔ 67,400 اسکوائر فٹ جگہ کو کارگو کمپلیکس کے لیے مختص کر دیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی ہیڈ کوارٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے کام شروع کر دیا۔ صدر چیمبر عاطف منیر کا کہنا تھا یہ بہت پرانا مطالبہ ہے، اس کی تکمیل فائدہ مند ہوگی۔ یہ عرصہ دراز سے فیصل آباد چیمبر کی ڈیمانڈ تھی کہ فیصل آباد میں کارگو ٹرمینل ہونا چاہیے، مگر انفارچونیٹلی جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں رن وے کی جو چھوٹا رن وے تھا اس کی وجہ سے بڑے پلین آ نہیں سکتے تھے، مگر الحمدللہ اگست میں انشاءاللہ وہ رن وے آپریٹنگ پوزیشن میں آ جائے گا۔ ایئرپورٹ مینیجر انور ضیاء کی جانب سے خط لکھنے کے بعد منظوری کا مرحلہ مکمل ہوا تھا۔ ایئرپورٹ مینیجر انور ضیاء کے مطابق مرکزی رن وے کی تعمیر مکمل ہوتے کارگو کمپلیکس پر کام شروع ہوگا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے نقشہ سمیت مسافر پروازوں پر کارگو کی ممکنہ گنجائش سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ایک سال میں 8,320 ٹن سامان صرف مسافر پروازیں لے جانے کے قابل ہوں گی۔ ایک مسافر پرواز فیکس 4 سے 10 ٹن تک لے جا سکیں گی۔ سابق سینئر نائب صدر انجینئر احمد حسن کا کہنا تھا شہر کا ریونیو بھی اوپر جائے گا۔ تو میں بھی یہ تو بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ کی بساست سے یا چیمبر کی بساست سے یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں، تو کل کو کوئک رسپانس مانگتا ہے امپورٹر، تو میرے خیال اس سے اچھا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہو جائے۔ سیالکوٹ اور کراچی سے کارگو کرنے والے ایکسپورٹرز کو بڑا سہارا ملنے سمیت فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارگو کمپلیکس کے قیام سے آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں، فیڈمک کا بورڈ ختم کر دیا گیا۔ فیڈمک کا بورڈ اثر نو تشکیل دے دیا گیا۔ فیڈمک کا بورڈ 5 ماہ پہلے ماہ نومبر میں تشکیل دیا گیا تھا۔ نئے بورڈ میں ظفر سرور بطور چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیڈمک کا بورڈ ختم کر دیا گیا۔ فیڈمک کا بورڈ اثر نو تشکیل دے دیا گیا۔ فیڈمک کا بورڈ 5 ماہ پہلے نومبر میں تشکیل دیا گیا تھا۔ نئے بورڈ میں ظفر سرور بطور چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے شراز بٹ سے۔ شراز بتائیے گا اس متعلق۔ جی بالکل، فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی فیڈمک کا بورڈ اثر نو دوبارہ سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اب سے 4 مہینے پہلے فیڈمک کا بورڈ جو تشکیل دیا گیا تھا اور اس کی لائف جو ہے وہ 4 مہینے ہی تھی۔ اب بورڈ ڈیزالو ہو چکا ہے اور دوبارہ سے تشکیل دیا گیا ہے، لہذا نئے بورڈ کے اندر 3 نام ایسے ہیں جو کہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، جو کہ پچھلے بورڈ میں بھی شامل تھے، جس میں ایک تو ظفر سرور ہیں جو کہ چیئرمین تھے فیڈمک کے، وہ دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے، اسی بورڈ میں بطور چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ ظفر سرور کے علاوہ فاروق زمان جو کہ کراش انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں، وہ بھی دوبارہ سے ایک ریپیٹ کرتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ان کا نام شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف ڈائریکٹر میں خاص طور پر اگر بات کیا جائے تو خرم مختار جو کہ صداقت لمیٹڈ کے سی ای او ہیں، وہ بھی بطور ڈائریکٹر فیڈمک میں اپنی خدمات پر انجام دیں گے۔ یہ وہ 3 نام ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکس آفیشیل کے طور پر پاکستان ہوزری مینوفیکچرر ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کنٹینیو کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ کئی نام مزید ہیں جو کہ نئے ہیں جو کہ شامل ہوئے ہیں، جس میں ساجد یوسفانی اور فاروق زمان، ان کے علاوہ جو ہے وہ خصوصی طور پر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر خرم مختار
वहीद अफजल और राना शहजाद शामिल हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इस वक्त खास तौर पर बात की जाए पिछले बोर्ड के हवाले से, तो उसकी खिदमात के हवाले से, तो एक जो बिजली का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया वो पिछले बोर्ड के दौर में ही किया गया था, और गैस का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और उसका इफ्तिताह भी किया गया था। हमाद अजहर ने उसका इफ्तिताह किया था, वो भी पिछले टेनोर में ही हुआ था। और पिछले टेनोर में आप कह सकते हैं कि क्योंकि बोर्ड आज ही डिसॉल्व हुआ है, 3 दिन पहले फेडमिक CEO का इंतखाब भी इसी बोर्ड के दौर में किया गया, तो इसका जो क्रेडिट है वो भी पिछले बोर्ड को ही जाता है। तो ये 3 अचीवमेंट्स हैं जो कि पिछले बोर्ड की जानिब से की गई है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा था कि फेडमिक के जो CEO का इंतखाब जो है वो गैर मामूली ताखीर के बाद। फेडमिक का बोर्ड असर-ए-नौ तश्कील दे दिया गया। शराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग हाउस में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के अहदेदारान और कारकुनान का इजलास जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। जो बड़ा मेहमान नहायत रहम करने वाला है, सबसे पहले तो मैं आज जिया भाई को सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने फैसलाबाद में, लाहौर के बाद पंजाब, पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद में मुस्लिम हाउस बना के ये साबित कर दिया है कि ऐसे हमारे साथ साथी तो हमें कहीं रोक नहीं हो सकता। और आपके लिए वो जगह बन गई है कि आज हम किस अच्छे तरीके से बैठे हैं, वरना हम ढूंढते होते थे कि यहाँ पे किस तरह बैठना है, और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप कह सकते हैं किस जगह जाएं, हमारा 24 घंटे ये दफ्तर खुला है। जिया भाई यहाँ पे हम खुद मौजूद होते हैं, जो आपको काम हो वो इंशाल्लाह वो आपके साथ खड़े होंगे। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मेरी बहन मरियम नवाज साहब, शेर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, और हमारे फैसलाबाद के सिटी सदर शेख एजाज साहब और जनरल सेक्रेटरी जिया साहब ने जो हमें हदायत दी है कि 24 तारीख को हमारी कायद मियाँ मरियम नवाज की क़यादत में लाहौर से रवाना होंगे और इंशाल्लाह हम उनका काला शाह काकू पे इस्तकबाल करेंगे, फैसलाबाद पूरा खड़ा होके, और वहां से हमने आगे इस्लामाबाद की तरफ रवाना होना है। और रास्ते में जैसे जैसे मुकाम पे हमने रुकना है वो आपको हम शेड्यूल दे देंगे। और आपके पास ये जो आखिरी चांस है, अब अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत दे दी है कि एक धक्का मारना है, और आप ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। आपने ये साबित कर देना है कि जो मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म है वैसा किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है, और पता हो कि इस्लामाबाद में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुन है और कोई कारकुन नहीं है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ निकलेंगे और हम लेबर विंग मदर लीग के साथ निशाना खड़ी होगी, जो हमें ये टास्क देंगे इंशाल्लाह मेरे भाई अब्बास साहब और मैं और आप सब मिलके उसे पूरा करेंगे, और ये साबित कर देंगे कि राना सनाउल्लाह का शहर फैसलाबाद ने ये साबित कर दिया है कि वो निकला है और वहां पे नजर आया है। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के भाई मियां शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। अभी आपको बताएं, रवा माली साल के दौरान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स तनाज़ात के हल के लिए कायम होने वाली ADCRC कमेटियों के जरिए टैक्स गुजारों के लिए रिलीफ। टैक्स गुजारों को 300 मिलियन रुपए का रिलीफ फराहम किया गया और 50 केसेस को हल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा तफसीलात के मुतालिक। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स तनाज़ात के हल के लिए रवा माली साल के आगाज़ पर ADRC के नाम से खुसूसी कमेटियाँ तश्कील दी गई थी। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियों में FPR अफसरान, टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स गुजारों को शामिल किया गया था, जिसका मकसद ये था कि ऐसे वो टैक्स केसेस जिस पर टैक्स गुजारों और FPR के मबैन मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर कोई तनाज़ात चल रहे हैं तो उनको अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए हल कर लिया जाए बैठ कर। तो इस हवाले से ADRC कमेटियों की जानिब से 50 से ज़ायद केसेस रवा माली साल के दौरान अब तक हल किए गए हैं, और इनमें 300 मिलियन रुपए का रिलीफ जो है वो टैक्स गुजारों को फ्राहम किया गया है। इस हवाले से FPR हुक्काम का कहना है कि इन कमेटियों के ज़रिए न सिर्फ टैक्स गुजारों को वक्त की बचत हो रही है बल्कि उनको रिलीफ भी मिल रहा है, और इन केसेस पे मजमूई तौर पर फैसलाबाद की हद में 300 मिलियन रुपए से ज़ायद तक का रिलीफ। शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, मैन्युफैक्चरर्स कैटेगरी में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पर नई शराइत आयद। FPR ने कारोबार की जगह पर जाकर तस्दीक लाजमी करार दे दी।
FPR ने मैन्युफैक्चरर्स की कैटेगरी में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने वालों के कारोबार की जगह पर जाकर तस्दीक को लाजिम करार दे दिया। पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन काशिफ ज़िया कहते हैं, अगर नाजायज कारोबार और डिफॉल्टर्स को पकड़ने के लिहाज से देखा जाए तो ये अहसन इकदाम है, मगर कारोबार में आसानियों को मद्देनजर रखा जाए तो ये ईमानदार कारोबारी हजरात को हरासा करने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता कि कोई भी अगर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसका स्टाफ जाके फैसिलिटी दे के वहाँ पे करता है। नो डाउट देयर आर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की इन्वॉल्व होती है कि जहाँ से वो इवैल्यूएट करते हैं कि ये रियल बिजनेसमैन है या नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इस गवर्नमेंट का भी नारा था और उसके अंदर इस तरह की शरायत का आना। काशिफ ज़िया का मजीद कहना था, दुनिया भर में ऐसा कोई कानून नहीं जिसमें कारोबार की जगह पर जाकर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होती हो। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ने नारा लगाया कि वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगी, तो हमें चाहिए कि इसमें ईज डाउन लेकर आएँ और इसको जो ऑनलाइन बिजनेस फैसिलिटी है उसके ऊपर लेके जाएं, ताकि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक ईज पैदा हो सके, ना कि फैसिलिटी पे जाके एज ए ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे खड़े होकर इसकी रजिस्ट्रेशन करें। तो हम इस बात को डिस्करेज करेंगे कि इस तरह का काम जो है वो नहीं है। काशिफ ज़िया ने शर्त को वापस लेते हुए ताजिर दोस्त माहौल फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कोरोना वबा के बाद तिजारती सफर बहाल। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद ने स्पेन के लिए तिजारती वफ्द तरतीब दे दिया। वफ्द कल स्पेन के लिए रवाना होगा। कोरोना वबा के बाद तिजारती सफर बहाल हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद ने स्पेन के लिए तिजारती वफ्द तरतीब दे दिया। वफ्द कल स्पेन के लिए रवाना होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहराज भट्ट से। जी शहराज, अपडेट दीजिएगा। ये वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का डेलीगेशन है जो कि कल स्पेन के लिए रवाना हो रहा है और स्पेन में तिजारती ताल्लुकात को इस्तवार करने के लिए ख़ास तौर पर बात की जाए कोरोना वायरस की वबा के फैलने के बाद से लेके अब तक ये वो गालिबन पहला डेलीगेशन होगा, ट्रेड डेलीगेशन होगा जो कि गैर मुल्की दौरे के ऊपर रवाना हो रहा है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर आतिफ मुनीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं वो इस डेलीगेशन के हवाले से क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ मुलाकातें होंगी, कौन से जॉइंट वेंचर्स होंगे, उनसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आतिफ भाई, 2019 से लेकर 2022 आ गया, अब हम एक इस काबिल हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक डेलीगेशन तरतीब दे रहे हैं जो कि कल स्पेन रवाना हो रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शराज। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इस कोरोना वबा के बाद जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी वो दोबारा बहाल होना शुरू हुई हैं। देखिए, किसी भी बिजनेसेस है दो ममालिक के दरमियान, उसे प्रमोट करने के लिए जो बायलैटरल ट्रेड है उसको प्रमोशन के लिए B2B मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स और ट्रेड डेलीगेशन का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर जाकर ये अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगे, पाकिस्तान के इमेज को प्रमोट करेंगे। और जो आपने बात की है मीटिंग्स की, मुख्तलिफ चैम्बर्स में इन डेलीगेशंस की मीटिंग होगी, स्पेन के मैड्रिड में, बार्सिलोना में, और पाकिस्तानी हाई कमीशन है जो हमारे बार्सिलोना में वो इसमें इन्वॉल्व हैं। वहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी में इनका विज़िट होगा और ये पाकिस्तान की मसनूआत को वहाँ पर मार्केट करेंगे, उन्हें वहाँ पर प्रॉपर उन्हें पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है इस वक्त एक इकनॉमिकल ग्रोथ है हमारी, उसके मतलब बताएंगे, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के मतलब बताएंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टूरिज़म को डेवलप करने की जो कोशिश की है इनको वो डेवलप करेंगे। देखिए, ये मुख्तलिफ ट्रेड से हैं जो लोग, मुख्तलिफ सेक्टर से हैं जो लोग ये इस ट्रेड में जो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं और ये वहाँ पर उन चैम्बर्स में उनके मेंबरान से मिलकर कल स्पेन से लिए रवाना होगा। शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे।